Hello students, today we are going to start our new chapter which is chapter number 17, the hydrosphere. Basically our earth is divided in atmosphere, hydrosphere and lithosphere. So basically today we are studying about the hydrosphere. What is hydrosphere? Here you can see that we just divide hydrosphere in uh, so many different part that how they comes on our earth and how they will perform. So basically as you can see over here, the hydrosphere is first of all the fresh water. Okay, every type of water which is available on our earth, which is called hydrosphere. Okay, now as you can see over here, fresh water. Fresh water. What is fresh water? Fresh water was described by rivers, glaciers, ice caps, lakes, underground water. Basically, we have to understand the hydrosphere, what is a hydrological cycle, and in this hydrological cycle, what is evaporation, what is condensation, and what is precipitation. Then we have to move on to fresh water. Basically, by precipitation, we can see that how the rivers were performed, glaciers and ice caps, lakes, underground of water, and as soon as we will move on to the saline water, which is major water bodies: Pacific Ocean, Atlantic, Indian, Antarctic, or Arctic. And major water bodies is waves, tides, ocean currents. So in this chapter, all we have to do, we have to study about that. And here we goes. So basically, what they are showing us that the presence of the real of water hydrosphere makes Earth a unique planet. What यहाँ पे ये सीधा तौर पे बताया जा रहा है कि हाइड्रोस्फीयर जो है बेसिकली बिकॉज आवर अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू planet. Why it calls a blue planet? Because everywhere is water and the living beings or living things are basically depends on only for water. उनका होना ही क्यों है? क्योंकि वाटर हमारी अर्थ के ऊपर है. तो वाटर इज often referred to as the blue planet due to the uh, abundance of water. The hydrosphere, along with the atmosphere and lithosphere, make life possible on Earth. The hydrosphere comprises all the different type of water bodies, along with groundwater. The water could be in both the liquid and solid form. Okay, so now in this, the groundwater, it's so basically what we are saying that the hydrosphere comprises all the different type of water bodies, which is solid, liquid, or gaseous form. Okay, so in hydrosphere we can see in the water in form of solid, liquid, and gaseous. Here you can see that the hydrosphere is sustained through the hydrological cycle. ओके, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है भाई? ये समझना थोड़ा जरूरी है और इसको जानना भी जरूरी है. थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा. दैट इन्वॉल्व्स एंडलेस सीरीज ऑफ चेंजेस, जो कि क्या है? एक एंडलेस सीरीज है चेंजेस की, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है. सबसे पहले तो आप इस बात पे गौर करिए कि यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में जो बताया गया है, वो क्या है भाई? दिस वाटर साइकिल consist of four parts: evaporation, condensation, precipitation, and collection. So uh, evaporation, condensation, precipitation, and collection. The water in the ocean became water vapor through the process of evaporation, which changes into clouds through condensation. बेसिकली क्या हो रहा है, जैसा कि हमने पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ा, सन से आने वाली जो रेज हैं हमारे सी पे पड़ती हैं. सी की जो वाटर को वो इवेपोरेट करती हैं. ये इवेपोरेट वाटर जो है कंडेंसेट होके, मतलब पास पास आकर, एक दूसरे के पास पास आकर, ये हमारा क्लाउड की फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है. व्हेन जो क्लाउड्स हैं, जो ये कंडेंसेशन की वजह से जो वाटर वेपर्स हैं, वो डस्ट पार्टिकल के ऊपर जमा हो जाते हैं. जैसे जैसे ये अपना पास पास आते जाते हैं, इनका साइज बढ़ता जाता है, और जब ये स्काई में स्टेबल होने के लिए इतना इनकी स्टेबिलिटी नहीं हो रह पाती, तो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में ये हमारी अर्थ पे आ जाते हैं. देयरफॉर द क्लाउड प्रेसिपिटेशन एज रेन और
snow that runs down into the rivers and eventually goes back to the oceans. Okay, जो कि रिवर के फॉर्म में हमारे यहाँ पे आता है, और सॉरी, जो कि रिवर के थ्रू हमें मिलता है और रिवर से होता हुआ वापस ओशन में चला जाता है एंड ऑफ द डे. So as you can see here, the amount of water that comes in by way of precipitation usually balance the amount of that is lost by evaporation. So basically यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जितना भी इवेपोरेशन हो रहा है, ओके, जितना भी इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही अमाउंट प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में ओशन को वापस मिल जाता है. इस वजह से ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है ना. The availability of water varies from one place to another, from season to season. Basically क्या हो रहा है, जो ये वाटर है ये हमारा एक प्लेस से, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चेंज होती रहती है. सीजन टू सीजन इनकी अवेलेबिलिटी चेंज होती रहती है. ठीक है. टाइम where water cycle is affected by human activities such as deforestation, pollution of water bodies and so on. Okay, so यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि ट्रांसपिरेशन क्या है यहाँ पे. सो बेसिकली transpiration है the process by which water absorbed by planets enters the atmosphere through the planet surface. Okay, so ये वाली बात ध्यान रखने वाली है. The availability of water varies from one place to another and from season to season. At time the water cycle is affected by human activities. So यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वेरी कहाँ पे कर रही है भाई, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर, एक सीजन से दूसरे सीजन के ऊपर. ठीक है. टाइम द वाटर साइकिल इज अफेक्टेड. जिस वक्त पे वाटर साइकिल अफेक्ट हो रही है बाय ह्यूमन एक्टिविटी सच एज डिफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज एंड सो ऑन. इसी ये क्योंकि इन चीजों में कंटिन्यूअसली चेंजेस आता जा रहा है. तो ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो धीरे धीरे हमारे जो डिफोरेस्टेशन की वजह से, पॉइंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से भी, ठीक है, ये हमारे एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं. नाउ यू कैन सी दैट फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर. तो सलाइन वाटर क्या है और फ्रेश वाटर क्या है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि वाटर, मोस्ट ऑफ द वेपोरेटेड वाटर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इज सप्लाइज बाय द ओशन. क्योंकि जो मोस्टली हमें रिवर्स में मिल रहा है वो तो ओशन से ही आ रहा है. अराउंड 90% ऑफ द ओशियन वाटर इज सलाइन. 90% ऑफ द ओशियन वाटर इज सलाइन. बिल्कुल सॉल्टी होता है ना, सॉल्ट से भरा होता है, मतलब उसको हम यूज में नहीं ले सकते, बिल्कुल भी ह्यूमन के कंजप्शन के लिए सुटेबल नहीं रहता है ना. ह्यूमन के कंजप्शन के लिए सुटेबल. इट इज सलाइन बिकॉज द रिवर while following over the land surface dissolve and carry various salt with them which is deposited when the river merge into the ocean. So basically यहाँ क्या हो रहा है, it is salined because the river while follow over the land surface. भाई जब रिवर लैंड सरफेस पे फॉलो करते हुए, गुजरते हुए ओशन में आके मिलती है, तो वो जब सरफेस से, लैंड सरफेस से गुजरती है तो अपने साथ बहुत सारे सोल्ट्स को भी साथ में लेकर गुजरने लग जाती है. तो एंड ऑफ द डे क्या होता है, एंड ऑफ द डे हमारा जो ओशन है उसके अंदर जो हमारा सलाइट वाटर ही रहता है. रिवर आके मिलती है तो जो जो सलाइट पार्टिकल्स है वो तो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, लेकिन जो वाटर है वो सलाइट ही बना रहता था. रिमेनिंग 2% इज फाउंड इन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप. और जो रिमेनिंग 2% जो अच्छा वाटर है वो ग्लेशियर और आइस कैप की फॉर्म में हमें मिलता है. while 1% is founded in groundwater, river, lakes, atmosphere and within the life forms. तो बाकी का जो 1% बचा हुआ है 100% में से, ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक, एटमोस्फेयर और विद इन द लाइफ फॉर्म वाला जो वाटर है वो पूरा 1% है. जो हमारी अर्थ में वाटर मौजूद है उसके से 1% है वो. ठीक है. इफेक्टिवली देयरफॉर ओनली 1% ऑफ वाटर इज सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन. तो इफेक्टिवली अगर ये देखा जाए इस बात से कि सिर्फ 1% जो वाटर है वो हमारे लिए
काम में आ सकता है। बाकी का जो 99% वाटर है वो फिलहाल उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। Today's lecture is over for now. We will study in next class. Thank you.